Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy and enjoying your teaching from home. So, student, today date is 8/9/2020. I am teaching you chapter number 14, means of transport. Okay. So, before starting the chapter, uh, before starting today topic, let recapitulate what we have done in our previous video. Open page number 72 of your book and take one pencil and rough copy so that you can note down the points from the board also, and if there is any confusion you can note down your confusion and you can ask that in the doubt session classes. Okay. So student, in the previous video we discuss why we need to go from one place to another. There are various reasons due to which we move from one place to another. So let's discuss first point: to our place of work or to reach school, to meet friends and relatives, to the market to buy the things, okay, and to other places in the neighborhood such as bank, hospital, railway station, etc., and to far off places during holiday also we move from one place to another, and to migrate from one place and another. So the meaning of the migrate word I explained you, even your father also in army, so maybe after 3 years they are posted from one state to another. That is the also reason you move from one place to another. So student, now see page number 72. Some of the pictures are given here. See, some of the pictures are given here. See the picture on page number 92. Sorry, page number 72. So this we have discussed. This also we have discussed in our previous video, which mean of transport you will use to go different places. Now student, let's start from today means of today topic. Now we'll start. I am on page number 72 and we start means of transport. So student, the different types of vehicles that we use to travels are called it means of transport. They help people and goods to move from one place to another. When we have to go a short distance from home, we use a cycle, car or scooter. So if the place is far, we use a train or an aeroplane. Thus, the vehicle we use depend how far we have to go and how much money we can spend. So what is a mean of transport student? The vehicle which that we use to travel from one place to another. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए बेटा जो हम लोग व्हीकल यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इज इट क्लियर? एंड इट कैरी अस आल्सो एंड आवर गुड्स आल्सो. ठीक है. हम जैसे एक जगह से मान लो कहीं हॉलीडेज में कहीं दूर गए, तो अब हमें भाई कपड़े चाहिए, बहुत से सामान चाहिए होते हैं, तो हम अपने साथ लगेज भी लेके जाते हैं ना. ठीक है. तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? ये दे कैरी अस आल्सो एंड आवर गुड्स आल्सो. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन व्हेन आई एम डिस्कसिंग व्हाई वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उस समय भी मैंने आप लोग से डिस्कस किया था. अगर नियर बाई प्लेसेस जाना हो, ठीक है, जहां हम रहते हैं, नियर बाई प्लेसेस जाना हो, where we are living, so what type of a mean of transport we use? We can go with the cycle, auto rickshaw, or we can also use the car. But if we have to go very long distance, okay, so if we have to go a very long distance, so at
For short distance we use what? We use cycle, auto, car, bike, or you can also write motorcycle. In this manner you can move from one place to another. But if you have to go very far, you have to cover a long distance, so at that time we use buses also, buses, or we go by train also, and we go by aeroplane also. All डिपेंड अपॉन हाउ मच मनी यू स्पेंड. देखो बहुत से मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है ये बेटा इस पे भी डिपेंड करती है कि हम कितनी मनी स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गो बाई ट्रेन फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली, इट टेक 12 hours. Okay. And but by air, by aeroplane you will go to Delhi, it will take less than 1 hour, it will take less than 1 hour. So but now the question arises, how which type of a mean of a transport you are using, it depends upon the money, how much you can spend. ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये डिपेंड करता है मनी पे, कि आप कितनी मनी स्पेंड कर रहे हो. ठीक है. आगे आपको समझ में जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे इसमें ले लो ऑटो रिक्शा, बहुत कम पैसा लगेगा. कार से जाओगे यू हैव टू स्पेंड मोर मनी. इफ यू गो बाई साइकिल देन आप पैडल करके चले जाओगे, यहां आपकी कोई मनी नहीं लग रही है. इज इट क्लियर? सो द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यू आर चूजिंग, और ये भी कह सकते हो कि आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो आपको उसके लिए क्या स्पेंड ज्यादा करनी पड़ती है? मनी. इज इट क्लियर? यू हैव टू स्पेंड मोर मनी. जैसे फार प्लेसेस के लिए बसेस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं. बट यू ऑल द थिंग डिपेंड अपॉन द मनी, हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड. आप कितनी मनी स्पेंड कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है. ठीक है. नाउ स्टूडेंट, इन टुडे टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट? लैंड ट्रांसपोर्ट. हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? लैंड ट्रांसपोर्ट. देखो देयर आर डिफरेंट, यहां लिखा ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. व्हेन वी आई एम टेलिंग यू अबाउट द means of transport, so means of transports are also divided into different parts. There is a land transport, the things which are moving on the road. Is it clear? So land transport, air transport is there, and water transport is there. When we are talking about the means of transport, so this it is divided into 3 categories, and land transport it is also divided into 2 categories. आया समझ में? सबसे पहले ये समझ लो कि वाई वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये सबको समझ में आ गया होगा. फॉर एग्जाम्पल वी गो टू आवर वर्किंग प्लेस, और एज ए स्मॉल किड्स यू गो टू स्कूल, or many times even you go with your parents to buy things from the market in your neighborhood places, or in your holidays you go to your relative houses or your friend houses. So these are many reasons why we move from one place to another. Now after that the question arises, what is mean of transport? So mean of transport is what the vehicle we are using. ठीक है. जो व्हीकल हम लोग यूज कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वही आपका क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इज इट क्लियर? और जब हम लोग ने डिस्टेंस की बात की, व्हेन वी आर कवरिंग ए लेस डिस्टेंस, हम कम दूरी पे जा रहे हैं, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या अलग हो जाते हैं. जैसे साइकिल से चले गए, बाइक से चले गए, ऑटो रिक्शा ले लिया, कार से. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मनी. मनी पे डिपेंड करता है. और फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, you can go with buses also, trains also, and aeroplane also. Is it clear? So these things we have discussed here. Now before starting the land transport, there is a match the column question given in your
book. First complete that question on the board, and after that I will explain you land transport. Match the column. Road numbering is not given in your book, so you can understand more simply. I am putting the numbers. Okay, first is road, second is water, third is air, and fourth is railway, and what are the options? A, B, C and D. Aeroplane, train, car and ship. So okay, so match the column. See this side: road, water, air and railway line. Okay, and what is written here? Aeroplane, train, car, ship. These all are means of transport. ठीक है, but these are different mean of transport. जैसे अभी मैंने एक बार शॉर्टकट में आप लोग को बताया कि लैंड ट्रांसपोर्ट भी है, एयर ट्रांसपोर्ट भी है, and there is a water transport also. So all the things are of a different mean of a transport है. For example, see, aeroplane can move. एरोप्लेन कहाँ चलता है बेटा? एयर में. So road is the right option for aeroplane. So no. Is it clear? If you see the trains are running or moving on the track. ठीक है, आयरन की ट्रैक होती है, ट्रैक पे ट्रेन मूव करती हैं, एंड वी हैव टू गो टू द रेलवे स्टेशन. ठीक है, आप रोड पे ट्रेन में नहीं बैठ सकते हो, बिकॉज ट्रेन कैन नॉट मूव ऑन द रोड, इट इज वेरी हैवी. ठीक है, सो ट्रेन मूव्स ऑन द, देयर इज ए ट्रैक फॉर द ट्रेन्स. सो ट्रेन इज आल्सो नॉट ए राइट आंसर. शिप मूव ऑन वाटर. ये किसमें मूव करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो ये भी आंसर राइट नहीं है. नाउ सी कार हैज व्हील्स एंड कार मूव ऑन द रोड. कार को आपने रोड पे ही मूव करते देखा है ना. सो फॉर द रोड द राइट ऑप्शन इज कार. What is the right option for the road? That is car is the right option for the road. Now see next is a water. What is next is the water. So aeroplane cannot move in water, train cannot move in water, car is the already right option of a road. So what is left now? Ship है, boat है, steamers हैं, rafts हैं, they all move on water. So what is the right answer for this water transport? That is ship. Okay, now air. So train cannot move in air, car cannot move in air, you know, ship move in water. So aeroplane can fly in the air. So what is the right option for air? Air is the aeroplane. What is the right option for air? Right option for air is the aeroplane. Is it clear? Now see next, railway line. Now what I am talking about कि जो रेलवेज होते हैं, जो ट्रेन्स हैं, दे रन ऑन अ ट्रैक. उसी को क्या बोलते हैं? व्हाट वी से इट एज ए रेलवे लाइन. ठीक है, क्योंकि उस ट्रैक को ही लाइन बोलते हैं. सो ऑन ए रेलवे ट्रैक, व्हाट कैन बी मूव ऑन ए रेलवे ट्रैक?
train can be moved. So what is the right option for this? That is or train. ट्रेन इज द राइट ऑप्शन फॉर रेलवे लाइन, जिसको हम लोग रेलवे ट्रैक भी बोलते हैं. ठीक है. अब चलिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, फिर बाद में आप आराम से नोट कर लेना. अब चलो, लैंड ट्रांसपोर्ट है, रीड कर देते हैं, देन आई एक्सप्लेन यू. ओके. लैंड ट्रांसपोर्ट, ऑल व्हीकल्स that travel on land are called means of land transport. ठीक है. It is the most common way of traveling. It connect all parts of the country and is less expensive. Train, cars, buses, motorcycles, cycles, etc. Okay. Cars, auto rickshaw, trucks are all means of land transport. So highway connect major cities. Some of them can go right till your doorstep. Can you guess which one? Okay, this we will discuss later on. Okay, when we are talking about the land transport, student, okay, see student, when we are talking about land transport, then land transport is also divided into two parts. Okay, first we discuss the vehicles which are moving on the road. देखो, vehicle is a common word. जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, कहते हैं बॉयज स्टैंड अप, ऑल द बॉयज स्टैंड अप, गर्ल्स स्टैंड अप, ऑल द गर्ल्स स्टैंड. हियर आई एम नॉट टेकिंग अ नेम ऑफ एनी चाइल्ड, या मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं एक कॉमन जो वर्ड है वो यूज कर रहा हूं. बॉयज लड़कों के लिए, और गर्ल्स बोला तो गर्ल्स स्टैंड हो गई. ठीक है. सो व्हीकल इज अ कॉमन वर्ड फॉर ऑल द थिंग्स विच आर मूविंग ऑन द रोड. ये वर्ड उन सारी चीजों के लिए जो किस पे मूव कर रहे हैं, रोड पे मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये समझ लो पहले. ठीक है. नाउ ऑल व्हीकल्स दैट ट्रेवल ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है. आर कॉल्ड मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. दो सो स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट राइट द नेम ऑफ द व्हीकल्स विच मूव ऑन द रोड. फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल्स move on road. For example, buses हैं, motorcycles, cycles, cars, carts, rickshaw. ओके. अब देखो, अब व्हीकल्स मूव ऑन रोड. अभी मैंने रोड का भी, इसमें ट्रेन का भी नाम दिया है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, देन इसीलिए मैंने जानबूझ के ट्रेन नहीं लिखा अभी बोर्ड पे. ठीक है. ट्रेन इज आल्सो ए लैंड ट्रांसपोर्ट. जितने भी व्हीकल्स हैं, ये जितने व्हीकल्स हैं, ये किस में आते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं. ओके. बट व्हेन वी आर स्टडिंग लैंड ट्रांसपोर्ट, इट इज आल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. द व्हीकल्स विच मूव ऑन रोड, रोड वाले व्हीकल्स हो गए एक, और एक हो जाएगा व्हीकल विच मूव ऑन अ ट्रैक या रेलवे लाइन, जो अभी जस्ट मैच द कॉलम में आपको बताया था. ए व्हीकल विच मूव ऑन ए ट्रैक, और यू कैन आल्सो से ए व्हीकल विच कैन मूव ऑन रेलवे लाइन, दैट इज योर ट्रेन, दैट इज योर ट्रेन. तो देखो, जैसे व्हीकल्स मूव ऑन रोड, फॉर एग्जांपल बसेस हैं,
बसेस है, मोटरसाइकिल्स है, साइकिल्स है, कार है, कार्स है, रिक्शाज, ट्रक्स, एक्स्ट्रा, ऑल दीज आर मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये कैसे हैं, ये ऑल दीज आर मीन्स ऑफ, ये सारे के सारे क्या लैंड ट्रांसपोर्ट हैं। ठीक है, अब देखो इसी में बता देता हूं, व्हेन वी स्टडी लैंड ट्रांसपोर्ट, तो एक फॉर्म तो ये हो गई। ठीक है, द व्हीकल्स मूव ऑन रोड, रोड अब हो जाएगा व्हीकल मूव ऑन रेलवे लाइन। तो अब आगे आ गई ट्रेन। ठीक है, सो स्टूडेंट ये जो ट्रेन है ये भी आपका विच मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दिस इज आल्सो मीन ऑफ ए लैंड ट्रांसपोर्ट ही है। इज इट क्लियर, दिस इज आल्सो अ मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये भी आपका जो ट्रेन आती हैं ये भी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आता है, बट डिफरेंस क्या है, इट कैनॉट रन ऑन द रोड, इट रन ऑन द रेलवे लाइन और यू कैन से रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, तो उस पे ये मूव करती है। यहां तक सबको आ गया समझ में। अब देखो व्हीकल्स मूव ऑन रोड, देखो मैंने व्हीकल वर्ड यूज किया, तो व्हीकल्स में सारे आ गए, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, कार्स, रिक्शा, ट्रक्स, एक्स्ट्रा, ट्रेन, सारे आ गए इस कैटेगरी में। इज इट क्लियर। अब पार्टिकुलरली किसी व्हीकल की बात करेंगे, जैसे हम बोलेंगे आई वांट टू गो विद रिक्शा और आई वांट टू गो विद बस, मोटरसाइकिल। इज इट क्लियर, सो आई होप व्हीकल क्या एक पार्टिकुलर कॉमन वर्ड यूज किया फॉर द थिंग्स विच आर मूविंग ऑन द रोड। ठीक है, अब देखो हो गया बसेस, मोटरसाइकिल, साइकिल्स, कार, कार्स, रिक्शा, ट्रक्स, एक्स्ट्रा। एंड व्हेन यू स्टडी मींस ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट जब हम पढ़ते हैं तो इट इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक पार्ट हो जाएगा द व्हीकल विच मूव ऑन रोड और सेकेंड पार्ट हो जाएगा व्हीकल विच मूव ऑन अ रेलवे लाइन और रेलवे ट्रैक, दैट इज देयर ट्रेन, दैट इज देयर ट्रेन। इज इट क्लियर, अब ये पूरा बता दिया आपको। नाउ सी, इट इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ ट्रेवलिंग, मोस्टली जो सबसे ज्यादा हम लोग ट्रेवल में यूज करते हैं मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं। ठीक है, आप खुद से सोचो, मैक्सिमम देखो जो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है सबसे ज्यादा कॉमन यूज होने वाला जो है वो मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट ही है। क्योंकि मैंने क्या बोला, एयर ट्रांसपोर्ट है तो एयर ट्रांसपोर्ट, अब आपको कहीं दूर जाना है देन यू विल गो टू द you take the ticket of a aeroplane and you move from one place to another, but it is very expensive, it depends how much money you can spend। लेकिन अब देखो आपको अपने नेबरहुड प्लेसेस में जाना है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो इतने कम रूट के लिए आपको एरोप्लेन नहीं ना मिलेगा बेटा, इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको एरोप्लेन नहीं ना मिल सकता। इज इट क्लियर, और अगर देखो एरोप्लेन जैसे आपको अपने नेबरहुड प्लेसेस पे जाना, आपको स्कूल जाना है पढ़ने के लिए, तो इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको एयरवेज एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, नो नहीं मिलेगी। ठीक है, सो मैक्सिमम जो कह रहा है जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट। और वाटर ट्रांसपोर्ट की जब बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट वहीं चलता है जहां पे क्या है, सी और ओशंस हैं। ठीक है, रिवर्स हैं, रिवर्स में बड़े बड़े शिप नहीं चल सकते, बड़े शिप किस में चलते हैं, सी और ओशंस में चलते हैं। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट वहीं चलेगा जहां वाटर होगा। इज इट क्लियर, जहां वाटर अवेलेबल है, जहां सी है, ओशंस है, जहां देर इज लॉट ऑफ वाटर, वहीं आपका वाटर ट्रांसपोर्ट चल सकता है। इज इट क्लियर, लेकिन जो जो लैंड ट्रांसपोर्ट है इसने सारी कंट्री को आपस में एक करके रखा हुआ है। इज इट क्लियर, दैट इज द रीजन हम क्या बोलते हैं कि ये सबसे कॉमन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है। सबसे ज्यादा यूज हम इसी ट्रांसपोर्ट को करते हैं, दैट इज एयर लैंड ट्रांसपोर्ट। उसका रीजन भी आपको बता दिया, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एयरवेज फैसिलिटी नहीं है, नहीं ना है, लेकिन सो दैट इज द रीजन। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट highway connect major cities, okay, these roads, another most important point upon the land transport is that the highways
of these it small villages or towns are connected with the cities and big city. छोटे गांव या छोटे शहर या बड़े शहर, बिग शहर, सब आपस में एकदम नेटवर्क की तरह सब जुड़े हुए हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? उसके पीछे रीजन क्या है? रोड. उसके पीछे क्या रीजन है? बाय द रोड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज देयर लैंड ट्रांसपोर्ट. से इज इट क्लियर? सो दीज इज हाईवे कनेक्ट मेजर सिटी एंड जो आपके लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट ने क्या है, पूरे नेटवर्क की तरह पूरे इंडिया के जितनी भी सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, आपस में सब एक दूसरे के टच में है ड्यू टू द नेटवर्क ऑफ द रोड. ठीक है, क्योंकि रोड पे ही ये व्हीकल्स किस पे मूव कर रही हैं बेटा? रोड पे. और जो जो रोड्स होते हैं जो विलेजेस को सिटी से, स्मॉल टाउन से और बिग सिटीज से जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? हाईवे बोलते हैं. ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाईवे बोलते हैं. वहां पे आप देखोगे मैक्सिमम बसेस, ट्रक्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और वन सिटी टू अनदर, कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए लोड. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए गुड्स कैरी करते हैं. ठीक, सो अब देखो एक बार लैंड ट्रांसपोर्ट की रिकैप्चुलेशन कर देते हैं. ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट में आपने क्या पढ़ा, उसके बाद फिर फर्दर डिस्कस करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट, सो व्हीकल्स विच मूव ऑन द रोड, ऐसी व्हीकल्स जो रोड पे मूव करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. एंड नाउ अनदर पॉइंट विच आई एक्सप्लेन यू स्टूडेंट, व्हेन वी आर talking about the land transport, it is also divided into two parts. It is also divided into two parts, one which move on road and one which move on railway line. So आपकी जो ट्रेन है ना बेटा, ये भी आपके लैंड ट्रांसपोर्ट पे जाता है, बट ट्रेन कैन नॉट मूव ऑन रोड. सो ट्रेन कैन मूव ऑन ए रेलवे लाइन और यू कैन से रेलवे ट्रैक. सो land transport is divided into two parts. One is vehicles moving on road and another vehicle which is moving on the railway line or you can say railway track. Okay, अब second important thing which we understand in this means of a transport में second important चीज हमने ये जानी कि the mean of transport which is मोस्ट कॉमनली यूज बाय द पीपल, ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, वो आपका है लैंड ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, वो क्या आपका लैंड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि एयरवेज क्या शॉर्ट डिस्टेंस सर्विसेज नहीं मिलेंगी. आपको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है तभी आप एरोप्लेन से जा सकते हो. ठीक है, अब जैसे आप अपने नेबरहुड प्लेस में जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, टेम्पल जा रहे हो, पिक्चर देखने मॉल में जा रहे हो, तो क्या इसके लिए आप एरोप्लेन से जाओगे? नो. सो here all the vehicles which we are using for going nearby places in our neighborhood or some other places also, we use the vehicles which are moving on road. और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे जाना है, then we use the train because train is very comfortable. बस से भी जाते हैं, लेकिन मोर सबसे ज्यादा आराम, कंफर्टेबल मतलब आराम, फैसिलिटी जो सबसे बेटर है वो आपको किस में मिलेगी बेटा? ट्रेन्स में, जो रेलवेज है. इज इट क्लियर? और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लैंड ट्रांसपोर्ट है, लैंड ट्रांसपोर्ट चलते हैं रोड पे. तो अब ये रोड क्या कर रहे हैं? दीज रोड कनेक्टिंग विलेजेस टू द टाउन, टाउन टू द सिटीज एंड सिटी टू द बिग सिटीज. ओके, सो दिस इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट की वजह से सारे विलेजेस, छोटे शहर, बड़े शहर, मेन शहर सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं. और किसके थ्रू कनेक्ट हैं? ड्यू टू द रोड्स. इज इट क्लियर? तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है लैंड ट्रांसपोर्ट की. इज इट क्लियर? सो हमने क्या क्या पढ़ा वो मैंने रिकैप्चुलेट आपको करा दिया. आफ्टर दैट देयर आर सम पिक्चर्स शोन टू यू इन दिस हियर. पिक्चर ऑफ ए बस, ऑटो रिक्शा, कार एंड बाइक. एंड वन क्वेश्चन इज आस्किंग, some of them can go right till your doorstep. Can you guess which one? इनमें से 4 things के नाम पढ़े मैंने, बाइक है, कार है, ऑटो रिक्शा, बस. इनमें से कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जो आपके बिल्कुल घर के पास जा सकते हैं? तो बाइक जा सकती है आपकी,
ऑटो रिक्शा भी जा सकता है, कार भी जा सकती है ना। सो दिस ऑल वी हैव डिस्कस टुडे अबाउट द about land transport. Land transports are very important. many eatable items, डेली यूज की जो eatable items हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, ब्रेड है, all these move from, all these things are available due to the land transport. ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ियां लैंड पे चलती हैं उन्हीं से ये चीजें मॉर्निंग के समय मार्केट में आती हैं। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट।